Evening, Sunday. I am again back on Altos Facebook page, talking to all the direct sellers of Altos and employees, also everyone else from the management. So these are our series which we have been doing for last 1 month: positive, precaution, and prescription. How to stay positivity, every day. It's what I feel is positivity, motivation is not like a training session. It's like something which we do every day. So what should we do that we stay positive is very, very important, because then you are automatically taking precaution. So you will not need a prescription from the doctor. Of course, Altos products are there to help you and to live a very healthy life and develop a healthy body as well. So now moving on, today is a very interesting session based to building an entrepreneur career. This is specifically for direct sellers. I will be talking to you about, what is going to be entrepreneurship, how to be a successful entrepreneur through the business of direct selling. 3 cores of direct selling: launch your career in direct selling, network building, and direct selling's career guidance. How to make your network, यानी कि आप अपना नेटवर्क कैसे बनाएं, कैसे बड़ा करें, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे पास आए थे. हाउ डू वी इंक्रीज आवर नेटवर्क, हम बात कैसे करें. ऑफ कोर्स उन क्वेश्चंस पे भी हम जरूर चर्चा करेंगे, बट फॉर टुडे आज का जो मेरा मेन जो आप लोगों से डायरेक्ट टॉक है वो है हाउ टू बिल्ड अ सक्सेसफुल entrepreneurial business through the business of direct selling. So उसी के साथ हम आगे चलते हैं. And सबसे पहले let's understand what is entrepreneurship. Entrepreneurship is something which is actually originated from the French word, and it means that someone should take risk, start a business on their own, and see how they can progress by fulfilling what they feel like to sell. Now, if you look at what I've written below, captain means that an entrepreneur is the captain of their ship. What you have to remember is that when you are an upline and you have a downline, so you are the captain of that entire sales team. So you consolidate a firm means that you consolidate your network, aggregates capital, you help your network that how they should use the money which they are earning. Preservant and passionate, टाइम मैनेजमेंट इसके ऊपर हम स्पेसिफिकली अलग से काम कर चुके हैं, और टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत ज्यादा नेसेसरी है. एक्शन ओरिएंटेड, यानी कि एवरी डे हमने क्या किया, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स एवरी डे इज गोइंग टू मेक अ बिग बिजनेस फॉर यू. इंसाइटफुल एंड creative and never giving up easily. Basically what we're trying to say is that you have to consolidate your network. In between you have to make sure that you never give up. In between आपने प्रोडक्ट बेचा, टाइम मैनेजमेंट किया, एक्शन किया, लेकिन इतनी सारी चीजें आई, you never give up. That is an entrepreneur. And मैं बहुत ही आपको जो जैसे आजकल हम सब लोगों को इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट नूडल्स, सब कुछ बहुत इंस्टेंट चाहिए, उसी तरह से अगर किसी को भी एंटरप्रेन्योर बनना है और वो भी इंस्टेंटली, then join direct selling business, because this is the only business in which you can become an entrepreneur just now in the next 10 to 15 minutes. If you want to be, then go and join Altos. So how to become an entrepreneur in direct selling, that is what we are going to talk. So how do we make sure that we are successful? Effort, ability, creativity and adaptability. अब इन सब चारों वर्ड से ना क्या मीनिंग है. एफर्ट यानी कि आपने मेहनत कितनी करी, बातचीत कितनी करी. एबिलिटी जो आपके ऑलरेडी अंदर है और किस तरह से आपने उस एबिलिटी को क्रिएट किया थ्रू द सपोर्ट व्हिच यू गेट फ्रॉम द ट्रेनिंग्स ऑफ Altos. एडेप्टेबिलिटी इज वेरी क्रूशियल, बिकॉज वो आपको सिखाई नहीं जाती, वो आपको खुद ऑन द फ्लोर ही सीखनी पड़ती है. किस तरह से आपका कस्टमर चाहता है कि आप उससे बात करें, किस तरह के प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि आप सब लोगों ने कितने ब्यूटीफुली कोरोना को लेके अडेप्ट किया है ना. आई एम ऑल्सो टॉकिंग टू यू थ्रू Zoom and Facebook. So how do we adapt to that situation in the now moment is very, very crucial. Are we ready to change? How much can we change? How much can we adapt to the current circumstances? That is very, very important. So ये 4 चीजें जो है मेन
आपको हमेशा याद रखनी है कितनी आपने कोशिश करी, आपकी में काबिल था, काबिल हर एक जना काबिल है। डायरेक्ट सेलिंग के लिए आपकी जो एबिलिटी है वो ऑलरेडी आपके डीएनए में है, आपको सिर्फ कोशिश करके क्रिएट करना है जो आपने सीखा, और उसी क्रिएशन को आपने डुप्लीकेट करना है। अडेप्टेबिलिटी इज अ सेपरेट क्लू विच यू हैव टू डेवलप ऑन योर ओन, और वो ऑटोमेटिकली आता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जब हम स्कूल में थे, आप, मैं, हम सब, कैसी कैसी सिचुएशंस आती थी, हर एक टीचर के साथ हम अलग अलग तरीके से अडेप्ट करते हैं, हर एक सब्जेक्ट में हम अलग तरीके से अडेप्ट करते हैं, और हमारे फ्रेंड्स भी जो होते हैं हम उन सब लोगों के साथ अलग अलग तरीके से अडेप्ट करते हैं ना। किसी को कुछ पसंद है, बट जिस तरह से उनको पसंद है वी अडेप्ट टू देम। सो इन that very manner we have to adapt to the changes which the market forces are giving us on a day-to-day basis. This is a very, very important thing which you have to make sure that you adopt. So launch your career in direct selling. Direct sellers set their own personal goals and objectives and work as much as he or she chooses. यानी कि आप अपना पर्सनल गोल बनाते हैं, कितना आपको काम करना है ये आप खुद बताते हैं। लेकिन मैं हर एक प्रेजेंटेशन में ये रिट्रीट करती हूँ कि आपको अगर सक्सेस चाहिए, आपको चाहिए कि मैं 15-20 हजार रुपए मिनिमम टू मिनिमम महीने का कमा लूं, तो 4 to 5 आवर्स आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप वो नहीं देते हैं और फिर आपने पूरे महीने में 1000 रुपए कमाया, तो दैट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस मॉडल, इट इज योर टाइम इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस। जैसे कि सचिन तेंदुलकर बिना क्रिकेट खेले रन नहीं बना सकता, उसी depends on your individual ambition and willingness to work. जैसे कि मैंने आप सब लोगों को अभी समझाया, there is no restriction to becoming a direct selling entrepreneur. I gave you an example of instant coffee. तो अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है और एकदम फटाफट से बनना है, go and join direct selling and go and join Altos just now. In the next, by the time मैं finish करती हूँ ये चर्चा आप लोगों के साथ, I am sure there will be lot of direct sellers. People who are listening to me will become direct sellers because now जो direct selling guidelines हैं उसमें ये बहुत clear कर दिया है कि you can just fill up a form and become a direct seller. आपको कोई भी investment नहीं करनी, कोई पैसे नहीं देने हैं. So that is again only unique to the direct selling business model. Of course, it is open to everyone except कि आपको 18 साल से ऊपर होना चाहिए. 3 cores of direct selling, ये मेरा बहुत ही फेवरेट चीज है. वर्ड ऑफ माउथ, मतलब इतनी रिसर्च, मतलब मैं आप लोगों से क्या, मैंने कम से कम 40-50 रिसर्च रिपोर्ट्स करी हैं, और स्पेसिफिकली डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर तो 15-20, मतलब देयर इज नो रिपोर्ट इन इंडिया व्हिच हैज बीन डन एंड आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट. और हर एक रिपोर्ट में ईयर आफ्टर ईयर वर्ड ऑफ माउथ कम्स एज नंबर 1 वे ऑफ सेलिंग, एंड देन पीयर टू पीयर सेल्स एंड नेटवर्क बिल्डिंग. ये 3 बिग पिलर्स हैं ऑफ डायरेक्ट सेलिंग. वर्ड ऑफ माउथ कैसे, क्या प्रमोशन कैसे हो, पीयर टू पीयर सेल्स कैसे करें, और नेटवर्क कैसे बिल्ड करें. So peer-to-peer, P2P selling. Peer-to-peer selling is the practice of leveraging brand advocates as an engine for self. और ये किसके ऊपर, मतलब how is it dependent? It is dependent on satisfied customers who are willing to share their positive experience to the public at large. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी आपके डाउनलाइन हैं, उनके कस्टमर्स हैं, आपके डायरेक्ट कस्टमर्स हैं. मान लीजिए कि वो कस्टमर आपका 5 इयर्स पहले था, आप आज जाए उनके पास कि आपने 5 इयर्स पहले ये प्रोडक्ट खरीदा था, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको जो बेनिफिट हुआ उसको रियल टर्म में दें. एक तो 2 चीजें होंगी. नंबर 1, 5 इयर्स पहले का आप एक नया लीड खोल रहे हैं. नंबर 2, you are going and talking. So again, you are looking at selling another product. So testimonials मांगते रहिए, मांगते रहिए, मांगते रहिए, हमेशा याद रखिएगा.
प्रोजेक्टिंग द वॉइस ऑफ द कस्टमर एंड एनेबलिंग सेल्स थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। ये इंटीग्रेटेड है पेयर टू पेयर। जैसे ही आप सेल करते हैं और आप टेस्टिमोनियल्स देते हैं, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। सो P2Me मॉडल में क्या चीजें हैं जो हमें करना चाहिए? वी शुड हैव अ सोशल मीडिया विच शुड बी वेरी एक्टिव। वी शुड इंश्योर कि हम ऑनलाइन रिव्यूज पे फीडबैक दे रहे हैं। अगर आपको कहीं पे कुछ गलत रिव्यू मिलता है तो उसको रिपोर्ट करिए और हमेशा हर एक रिव्यू को रिस्पॉन्ड करिए। एंड कस्टमर टेस्टिमोनियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक ऑफ पीयर टू पीयर, बिकॉज लोगों को क्या अच्छा लगता है? कस्टमर टेस्टिमोनियल्स की वजह से ऑथेंटिसिटी लगती है। हर जना सेल या प्रोडक्ट तब खरीदना चाहता है, अपने ही लोगों से खरीदना चाहता है, क्योंकि हम सब एज ह्यूमन बीइंग्स वांट टू वर्क विद द पीपल हुम वी लाइक। सो हमेशा कोशिश करिए कि हमेशा आप टेस्टिमोनियल लें। नेटवर्क कैसे बिल्ड किया जाए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे पास, बार बार ही आया है, नेटवर्क कैसे बिल्ड करें। तो ये एक मेथोडोलॉजी है जिसको आप रेफरल से करते हैं, रेफरल से बनाते हैं, प्रोफेशनल नेटवर्क से बनाते हैं और अपने कोर एरिया से बनाते हैं। इसको मैंने पहले एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाया था कि आप लिखिए कि कैसे आपको अपना, कितने लोग आप जानते हैं, जो आपके बहुत दूर के लोग हैं उनको भी लिखिए। फिर उसमें से शॉर्टलिस्ट करें कि कितनों को आप अप्रोच कर सकते हैं। जितने को आप अप्रोच कर सकते हैं उनको बोलिए कि वो एक एक जने को रेफर कर दें। मान लीजिए आपने 100 लोग निकाले, जिसमें से आपने निकाला कि सिर्फ 30 लोग हैं जिनको मैं अप्रोच कर सकता हूँ। उन 30 लोगों ने अगर आपको 15 लोग दे दिए, अगेन यू कैन इंक्रीज दैट 15 इनटू अनदर 10। सो मैं जब भी आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं उससे बता रही हूँ जो कि मिनिमल पॉसिबिलिटी है। 100% मैं उसका नहीं ले रही हूँ, ऑलमोस्ट 50% ले रही हूँ। सो अगर हम स्पेसिफिकली बुकिश नॉलेज में जाएं तो आपको दो चीजें करनी है, एक तो पोटेंशियल लीड्स और दूसरा वेल कनेक्टेड इंडिविजुअल्स हु कैन इंट्रोड्यूस यू टू पोटेंशियल लीड्स एंड देयर नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर आप सोशल मीडिया का जरूर इस्तेमाल करें, लिंक्डइन के अंदर भी यूज करें और ब्लॉग्स भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम उस पर भी कुछ थोड़ी बहुत चर्चा आगे के कुछ सेशंस में जरूर करेंगे। लेकिन ब्लॉगिंग एक नया तरीका है जिससे कि आप तीनों चीजें, वर्ड ऑफ माउथ, P2P सेल्स एंड नेटवर्क बिल्डिंग। एंड ब्लॉगिंग का ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है, आप हिंदी में लिखिए, बंगाली में लिखिए, पंजाबी में लिखिए, जो लैंग्वेज आप लिख सकते हैं उसमें लिखिए। चाहे आप सिर्फ ये लिखें मेरा संडे, पर जितना आप लिखेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बारे में, सेल उतनी ज्यादा होगी, बिकॉज पीपल विल रिलेट टू यू। चलते हैं आगे। फिर अब है मेन डायरेक्ट सेलिंग करियर गाइडेंस। तो कैसे करें, करियर कैसे बनाया जाए डायरेक्ट सेलिंग को? सबसे पहले ओनली सेल व्हाट यू जेन्युइनली यूज एंड एंजॉय। आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, नो वेयर योर मार्केट इज, सेल बाय स्टोरी टेलिंग। हमारे को एक आया है, कुछ मैसेज आया है कि भाई मैम हमें एक्सप्लेन भी करें जो मैं पॉइंट्स पढ़ रही हूँ। तो एकदम निश्चिंत रहिए, ये तो सिर्फ मैं आपको पढ़ रही हूँ कि मैं किस चीज पे बातचीत करेंगे, पर हर एक पॉइंट के ऊपर मैं आपको पूरे 2-2 मिनट दूंगी समझने के लिए, बातचीत करने के लिए कि कैसे हम डायरेक्ट सेलिंग को एज अ करियर बनाए और सक्सेसफुल भी रहें। सेल बाय स्टोरी टेलिंग, इस स्टोरी टेलिंग वाली स्लाइड को जरूर फोकस करिएगा, उसमें मैंने एक लिंक भी दिया है जहां पे आप आगे जा सकते हैं। डिस्टिंग्विश योरसेल्फ विद यूनिक ब्रांडिंग, यानी कि जब आप आएंगे इस स्लाइड पे तो मैं आपको एक बहुत ही बड़ा क्लू दूंगी कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। बुक एज मेनी मीटिंग्स एज यू कैन, ऑलवेज फॉलो अप विद प्रोस्पेक्ट्स, हार्नेस द पावर ऑफ सोशल मीडिया, create strategic partnerships, highlight reviews and testimonials, be persistent and committed. So चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। only sell what you genuinely use। तो इसके अंदर क्या 3 चीजें आपको याद करनी है। द बेस्ट डायरेक्ट सेलर्स यूज एंड लव द प्रोडक्ट्स दे आर सेलिंग, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उनको बेचना ज्यादा आसान है। इनफैक्ट मैं आपके साथ गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, मान लीजिए आपके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से 15 प्रोडक्ट्स हैं जो आप खुद एवरी डे यूज करते हैं, तो वो 15 प्रोडक्ट्स की सेल आपकी ज्यादा होगी इंस्टेड की जो बैलेंस आपके प्रोडक्ट्स बचे होंगे।
So the more you use, the more you like the product, the more benefits you get to know, जो आपको कस्टमर, जो आपको Altos या किसी भी कंपनी ने बताए नहीं होंगे, बिकॉज हर एक की बॉडी हर एक चीज के लिए डिफरेंटली रिएक्ट करती है. सो वो आपको देखना है कि किस तरह से आप कितना प्रोडक्ट्स यूज करेंगे. देन टॉक, एंड जब हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और हमें बहुत बेनिफिट हुआ है तो एंथुजियाज्म से बात करें. एंड दिस enthusiasm and usage of product leads to automatic sales. जब हमें पता है कि इससे हमें बेनिफिट है, हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, तो हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि वी शेयर कि हमने ये प्रोडक्ट यूज किया और हमें ये बेनिफिट हुआ. डोंट फाइंड कस्टमर्स फॉर योर प्रोडक्ट्स, फाइंड प्रोडक्ट्स फॉर योर कस्टमर्स. यानी कि कस्टमर्स को ढूंढिए जिनको आपके प्रोडक्ट की जरूरत है. और Altos का पूरा बहुत बड़ा प्रोडक्ट रेंज है, अराउंड 250 प्रोडक्ट्स हैं. तो उसमें से हर एक कंज्यूमर के लिए 1 से 5 प्रोडक्ट निकल ही आएंगे. तो कोशिश करिए कि किस तरह से आप उनको डिवाइड करें. और याद रखिएगा कि प्रोडक्ट जरूर यूज करना है और रोज रोज यूज करना है. मान लीजिए आप किसी के पास गए हैं कि आपको वेट लॉस कराना है. वेट लॉस में हमेशा ये बोला जाता है कि आपको कार्बोहाइड्रेट कम करना है और प्रोटीन इनटेक बढ़ाना है. तो जो आपका Altos का प्रोटीन पाउडर है, आपने कितना यूज किया है, आपने अभी यूज किया है या पिछले 4 साल से कर रहे हैं या पिछले 1 साल से कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए. जिससे अगर कस्टमर सवाल करे तो आपके पास जेन्युइन जवाब हो. दैट इज इंपॉर्टेंट. अब दूसरा आया आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस. ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. हमेशा याद रखिए कि कैसे किया जाए, टारगेट ऑडियंस को कैसे चुने. refers to specific group of consumers most likely who want products offered by a direct seller. काफी सारे लोग होते हैं जिनको चाहिए कि नहीं हमें ना डायरेक्ट सेलिंग जो है, हमें वहीं से लिपस्टिक लेनी है, या हमारे को मसाले नए लॉन्च हुए हैं तो वो Altos के मसालों की ना महक बहुत अच्छी है तो हमें वहीं से लेनी है. तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से मैं अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करूं. इसका बहुत ही इजी तरीका जो मैंने आपके लिए बनाया है, एज, जेंडर, इनकम कितनी है, लोकेशन एंड प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया. प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि उससे आपको उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स पता चल जाएंगी. लोकेशन आपको अगर P2P की थ्रू मिला है तो डेफिनेटली आपको लोकेशन पता है. एंड बॉल पार्क फिगर आपको इनकम का भी पता है. एज इसलिए जरूरी है बिकॉज हर प्रोडक्ट आप हर किसी को नहीं बेच सकते. जो बच्चों का प्रोडक्ट है वो बच्चों के लिए जाएगा या टीनेजर्स के लिए जाएगा, लेकिन जो बड़ों का प्रोडक्ट है या जो महिला का प्रोडक्ट है वो महिला के लिए जाएगा. दूसरी बात, प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया इसलिए जरूरी है बिकॉज हर एक एज ग्रुप के लिए आपके पास डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो वो को ध्यान रखना है. इनकम लेवल इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये बहुत रियल आपको स्टोरी बता रही हूँ मैं. मान लीजिए कि आप गाँव में हैं और वहां पे उस घर की आमदनी है करीब 4-5 हजार रुपए महीना. उनके पास ट्रैक्टर है. अब 5,000 रुपए उनकी इनकम है, उनके पास ट्रैक्टर है. आप जाके वहां पर कार वॉश बेच रहे हैं और जो आपकी कार वॉश की वैल्यू हो गई 1500 या 2000, आप मानिए कि वो आप गलत सेल कर रहे हैं. बिकॉज उनका इनकम लेवल नहीं है कि वो 1500 का प्रोडक्ट ले. तो देन यू आर टारगेटिंग द रॉन्ग कस्टमर. अपने लिए भी प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं और इंडस्ट्री के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं. तो ये मत करिए. नो योर मार्केट, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है, इस पे हम थोड़ा ध्यान भी ज्यादा देंगे. आई विल स्पेंड मोर टाइम ऑन इट. इसको देखिए. अंडरस्टैंड द मार्केट. मार्केट में कौन लोग हैं, आप, मैं, और आप और मैं कौन है, कस्टमर्स हैं, हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, कंपटीशन है. तो ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं और नए नए प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर, ये सारी चीजें हैं. और खास करके वूका वर्ल्ड, यानी कि जो है एनवायरनमेंट ऐसा है जो अनप्रिडिक्टेबल है. जैसे कि वॉलेटाइल होता है एनवायरनमेंट, अनप्रिडिक्टिव होता है, जैसे कि हमारा कोरोना आया. सो ये सारी चीजें हैं. तो सबसे पहले ये सोचिए कि कोई मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदे. Why should someone buy my product? इसके बारे में आज जरूर ध्यान दीजिएगा और जितना भी हो सके जरूर पोस्ट करिएगा. हम देखते हैं और 5-10 मिनट में कि क्या क्या सवाल आए. और why should someone buy your products, इसके बारे में जरूर 1 लाइनर्स भेजिए.
बिकॉज ये बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद अपने आप को नहीं समझेंगे कि मेरा प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदे, क्योंकि आपके जैसे प्रोडक्ट औरों के पास भी है और कंपनीज भी बेच रही हैं, तो मैं ऐसा क्या ला रहा हूं कि प्रोडक्ट्स मेरे से खरीदे जाए, उसके बारे में मुझे आप लोगों का जवाब चाहिए। अब स्टेप 2, रिमेंबर, कस्टमर जो है जब बाय करता है तो 3 बेसिक चीजें होती है। नंबर 1, एक पॉजिटिव फीलिंग आए कि नहीं मैंने इतना खरीदा एंड आई एम सो हैप्पी, यू फील दैट फीलिंग कि अच्छा आज इट वाज अ गुड डे। देन कोई प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम को हमेशा 2 हिस्सों में बांटिए, एक तो इमीडिएट प्रॉब्लम और एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ना किसी को खांसी जुकाम हुआ, यानी कि इमीडिएट, तो वो आपसे फोन करके, अगर आप जान पहचान में है और उनके कि ना वो बच्ची को खांसी हो गई है, कुछ है आपके पास आयुर्वेदिक, इमीडिएटली यू हैव टू सेल। फिर एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, दादी की टांगों में बहुत दर्द है, आपको टारगेट करना है। दैट इज वाई मैंने स्पेसिफिकली लिखा है फॉर सॉल्विंग एन इमीडिएट और अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, तो ये आपकी इमीडिएट सेल हुई। फिर है फॉर फुलफिलिंग बेसिक नीड्स, जैसे कि अब मसाले हैं, हमें चाहिए ही चाहिए, और जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं एल्ट्रॉस के, उनको भी, वो भी अपने घर में मसाले यूज करते हैं, तो आपका मसालों की नीड आप उससे पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनको चेंज करना पड़ेगा बिकॉज वो डेफिनेटली कोई और मसाले यूज कर रहे थे। सो यू हैव टू सेल कि इसमें ऐसा की क्या खास बात है कि आपके प्रोडक्ट को खरीदा जाए। नाउ स्टेप 3, व्हाट नेक्स्ट। 3 चीजें मैंने आपको बता दी। अंडरस्टैंड द कस्टमर प्रॉब्लम्स व्हिच कैन बी सॉल्व्ड, आपको मैंने एग्जांपल दिया फॉर सॉल्विंग एन इमीडिएट और अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। Which specific customer will benefit from the product and offer। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, कई बार ऑफर आता है सोप के ऊपर, 1 सोप लेंगे और 1+2 का फ्री ऑफर आता है, तो क्या वो महिला रेडी है? बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है कि ऑफर अवेलेबल है बट कस्टमर को नहीं चाहिए, तो इम्पोज मत करिए, ऑफर बताइए पर इम्पोज मत करिए। एवरी टाइम रिमेंबर, every time a customer does not want to save money, every time a customer wants to spend only 200 rupees। मान लीजिए आपने बोला कि मेरा प्रोडक्ट है, इसमें ऑफर आया हुआ है, 30% एक्स्ट्रा है और 30% जो है एमआरपी से भी कम है, बट वो जो प्रोडक्ट रेंज है आपके कस्टमर को सूट नहीं कर रहा, तो वो बोलेगा मुझे रेगुलर ही चाहिए क्योंकि ये तो मेरी रोज की चीज है, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, बट मुझे एक्स्ट्रा नहीं लेना है, वो मैं नेक्स्ट मंथ ही लूंगा। बिकॉज उसने लिमिट बनाई हुई है कि उसकी बजट कितनी है या उसका खर्चा कितना करना है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, आप खुद क्या वैल्यू एडिशन लेकर आ रहे हैं उस कस्टमर के लिए। बेच तो सभी रहे हैं, तो वैल्यू एडिशन जो आप लेके आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। हमेशा याद रखिए, एक ही कंपनी के 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और एक क्लाइंट है। मान लीजिए क्लाइंट को नहीं पता कि भाई 2 लोग हैं या आप लोग अलग अलग हैं या डाउन लाइन है या अप लाइन है, जो जितना फॉलो अप करेगा उसका ही प्रोडक्ट बिकेगा और जो जितना एक्सप्लेन करेगा, ये हमेशा याद रखिए। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सेल बाय स्टोरी टेलिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैंने डाला है इसके अंदर, और इस लिंक पर भी जरूर जाइएगा। इसमें है कि स्टोरी टेलिंग हर एक किसी को आनी चाहिए। जैसे कि अगर आप देखें, मैं जब भी आप लोगों से बातचीत करती हूँ, कुछ ना कुछ छोटी छोटी 1-1 मिनट 30 सेकेंड्स की कोई ना कोई इंसिडेंट, कोई ना कोई कहानी आपको सुनाती हूँ। तो वैसे ही अपने प्रोडक्ट के बारे में, जो भी आपके फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपने यूज किया हुआ है, जिनसे आपका सेल्स इंसेंटिव ज्यादा आता है, उनको, उनके हर एक के ऊपर आप एक स्टोरी बनाइए और फिर उस स्टोरी को जब आप नरेट करेंगे देन सेल इट, और आप देखेंगे कि चेंज आएगा। बिकॉज देन कस्टमर को एक खुशी होती है कि अच्छा उसने बताया था उसकी दादी के साथ उसने ली थी तो ये हुआ था। तो कुछ कहानियां रियल होती हैं, कुछ कहानियां मिक्स करके नॉर्मल इंसिडेंट्स को क्रिएट की जाती हैं, बट कहानियां सारी ही सच्ची होती हैं, झूठी कोई भी कहानी नहीं होती, हमेशा याद रखिए। सो ये जो है आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। यहाँ पे मैंने लिंक्डइन का लिंक दिया है डॉक्टर अमित नागपाल का, ये प्रेसिडेंट हैं ब्लॉगर्स अलायंस के। ये बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं ऑन स्टोरी टेलिंग, इनको इनके आप इस लिंक पे जा सकते हैं और ये फ्री का है, इसमें आपको कुछ चार्ज नहीं देना है। तो जरूर सीखिए कि किस तरह से स्टोरी टेलिंग सेल्स में की जाए।
डिस्टिंग्विश योरसेल्फ बाय यूनिकली, व्हाट इज सो यूनिक अबाउट यू, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला। सो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स आप कर सकते हैं। स्टार्ट विद योर पोजिशनिंग, आप किस तरह के हैं, कैसे बनना चाहते हैं। हमेशा बी जेन्युइन ऑल द टाइम, यानी कि जब आप घुसे, अच्छा हाँ यादव जी आ गए, नहीं नहीं नहीं, ही इज वेरी ऑथेंटिक। मैं लास्ट टाइम उनसे मिली थी, उन्होंने इतनी बढ़िया से मुझे एक्सप्लेन किया कि किस तरह से प्रोटीन पाउडर को यूज करना है। मैं तो बस उनसे फिर से पूछने जा रही हूँ कि कहीं वो मुझे बताएं कि न्यू रेसिपी कोई है उनके पास। तो सो दैट इज व्हाट पीपल हैव टू थिंक अबाउट यू। फाइंड अ बैलेंस बिटवीन पैशन, नॉलेज एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इन तीनों चीजों का बैलेंस बहुत जरूरी है। सिर्फ पैशन से जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। वो जो आप जिसको आप बेच रहे हो वो परेशान हो जाएगा, बिकॉज यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट 100 times, you don't have to product 10 qualities of the product, you have to speak 3 to 5 qualities, यानी कि आपकी बातचीत से लगे कि आपको नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में। प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखनी है कि आपको उस प्रोडक्ट के बेचने से क्या सेल्स इंसेंटिव मिल रहा है, क्या बिजनेस वॉल्यूम या पीवी वॉल्यूम मिल रही है। या मान लीजिए आपने सर्टेन टारगेट अचीव कर लिया है, तो एक्स्ट्रा टारगेट अचीव करने के लिए यू आर गेटिंग सम इवेंट जहां आपको पार्टिसिपेशन जाना है, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं, या इंटरनेशनल शिप है। गिव योर कस्टमर एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। जब भी वो आपसे प्रोडक्ट खरीदे, उससे खुशी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप इतना घुल मिल जाते हैं अपने क्लाइंट के साथ कि क्लाइंट प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं कर रहा, आपसे मिलने के लिए प्रोडक्ट खरीद रहा है। और ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही अवेलेबल करती है। मानिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छे से यूज करिए। यूके में करीब 4 से 5 साल पहले हग सेंटर्स बन गए, यानी कि लोग ऐसे हैं वहां पर कि आप हग करने के लिए जाते हैं एक हग सेंटर में, और वहां पे आप हग करते हैं। बिकॉज मैन काइंड, ह्यूमन काइंड, आप और मैं, हम सबको टच की, मिलने की, जुलने की, बातचीत करने की एक नेसेसिटी है। इट्स लाइक आवर लाइफ लाइन। So people want to meet the people whom they like, and they will buy the product from the people whom they like. So बहुत बारी ऐसा होता है, because of your knowledge someone will call you कि नहीं वो लास्ट टाइम आपने बताया था, मेरी फ्रेंड आई हुई है, एक बारी आके आप फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देन गो। मान लीजिए कि आप बहुत बिजी हैं, आप नहीं जा पाए हैं, तो डेफिनेटली उनको फोन करिए कि मैम मैं संडे को फ्री हूँ, मैं इतने बजे आ जाऊं। या इस तरह से करिए कि आप और दोनों जने एडजस्ट होकर विद इन 1 वीक आप उनको मिल। 1 वीक से ज्यादा वेट ना कराएं अगर क्लाइंट ने आपको फोन किया है। कल्टिवेट, जो भी मैंने आप चीजें आपको बोली, ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाएगी। नो हु यू आर एंड बेट ऑन योरसेल्फ। मैं आपको जो ये है ना, नो यू हार्ट एंड बेट ऑन योरसेल्फ, उसका मैं आपको बहुत ही अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल दे रही हूँ। मुझे मालूम है कि मेरी क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं। तो अगर मेरे को कोई चैलेंज कर रहा है, तो मुझे मालूम है कि हाउ आई हैव टू डील विद इट। बट हमेशा मान के चलिए, चैलेंज डज नॉट मीन टू फाइट, challenge does not mean to choose the battles which you want to fight. No, what we have to do is हमें battle delete करना है, हमें fight delete करनी है, हमें बातचीत शुरू करनी है। So know yourself, और हमेशा अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस लेंगे कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच ही है और सही है, और जिसको मैं बेच रहा हूं उसके लिए बेनिफिशियल। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बुक एज मेनी मीटिंग्स एज यू कैन। ऑफ कोर्स जूम पे बहुत मीटिंग्स हो रही हैं, और फेस टू फेस मीटिंग्स हमारी कम होती थी, लेकिन जूम पे ज्यादा मीटिंग्स हो रही हैं। और कैसे मीटिंग्स करी जाए उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। गाइडलाइंस फॉर बुकिंग मीटिंग्स। डिफाइन योर आइडियल कस्टमर, कि आपको कैसा कस्टमर चाहिए, सोचिए उसके बारे में। रिसर्च योर प्रोस्पेक्ट्स। मान लीजिए आपको किसी ने रेफरेंस दिया कि उनसे जाके मिलना है, अब तो गूगल है और इंटरनेट है, उसके बारे में देखिए कि वो पर्सन क्या है, कौन है, कहाँ जा रहा है, या क्या करता है या करती है। कम्युनिकेट योर वैल्यू प्रोपोजिशन, यानी कि आप उसके पास जाकर क्या बोलने जा रहे हैं, थोड़ा सा उनको डिस्कस कर लीजिए। सेंड पर्सनलाइज आउटरीच। पर्सनल कैसे बने,
तो बातचीत करके ही आप पर्सनल बन सकते हैं। जो ईमेल्स अगर आप फॉलो अप करते हैं तो ईमेल्स को बहुत शॉर्ट एंड सिंपल रखिए, और बहुत ही आसान तरीका बता रही हूं मैं सिंपल रखने का ईमेल्स को। I met you last week and followed by a discussion I have given you the following 1 2 3 and close। जब भी आप ये सेंटेंस यूज कर सके, फर्दर टू आवर डिस्कशन आई हैव प्लेस्ड बिलो द फॉलोइंग, यानी कि एक सेंटेंस में आपकी बात खत्म, उसके बाद जो भी आप प्रोडक्ट के बारे में ब्रोशर भेज रहे हैं या डिटेल भेज रहे हैं उसको 1 या 2 या 3 पॉइंट्स में करके क्लोज। बी स्पेसिफिक अबाउट द पेन पॉइंट्स यू सॉल्व। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि किसी ने देखा कि भाई माताजी के टांगों में पेन है और आपको फोन आया, किसी ने बोला कि नहीं मेरी बेटी को खांसी जुकाम हो गया है, तो उस समय वो इमीडिएट सेल है और वो उनके पेन पॉइंट्स हैं। जैसे ही आप उसका सोल्यूशन देंगे वो वैसे ही बिक जाएगा। हमेशा याद रखिए, हर एक जना चाहता है कि मेरे बच्चे बेहतर रहें और हर एक जना चाहता है कि मेरी माँ या मेरे पेरेंट्स को कष्ट नहीं, तो इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। फोन और ईमेल को कंबाइन करिए, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया आपको यूज करना ही है। तो बिल्ड डिस्कवरी क्वेश्चंस इनटू योर सेल्स मीटिंग। जैसे कि मैं आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ और मैंने आप सब लोगों को सवाल दिया है कि आपसे कोई कस्टमर प्रोडक्ट क्यों खरीदे, उसके बारे में मुझे बताइए। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। फॉलो अप विद द कस्टमर्स, सबसे नीचे अपनी निगाहें डालें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 80% ऑफ सेल्स रिक्वायर 5 फॉलो अप कॉल्स आफ्टर मीटिंग, यानी कि आप जितने भी लोगों से मिले 5 कॉल्स करेंगे तब जाके आपका 80% आपकी प्रोडक्टिविटी निकलेगी। एंड 44% ऑफ सेल्स पीपल गिव अप आफ्टर 1 फॉलो अप। ये वही लोग हैं जो ये 44% ऑफ सेल्स पीपल, ये वही सेल्स पीपल है जो बोलते हैं कि नहीं हमने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया था और हमसे तो हुआ नहीं। तो कुछ गलत और सही नहीं है, बस ये है कि हमने एफर्ट कितना डाला, कितना हमारे पास टाइम था, कितनी हम बातचीत कर सकते थे और क्या हमारा फोकस था एट दैट मोमेंट इन आवर लाइफ। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। सो नाउ कैसे किया जाए कस्टमर्स के साथ फॉलो अप। जब भी आप कस्टमर से मिले उनसे पूछें कि मैं अगली बारी जब आपसे बातचीत करूं तो हाउ वुड यू लाइक, मैं आपको फोन कर लूं या मैसेज करूं, व्हाट्सएप पे करूं या टेलीग्राम, या काफी लोग होते हैं कि नहीं आप ना मुझे फेसबुक पे डीएम कर देना या आप इंस्टाग्राम पे कर देना, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, बच्चे टीनेजर्स को अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उनसे स्नैपचैट पे बात करिए। सो आस्क हाउ शुड यू फॉलो अप, डिटरमाइन द नेक्स्ट फॉलो अप स्टेप, यानी कि सोचिए कि आज मैंने सेल करी है, अब मेरे को इस कस्टमर के साथ और क्या क्या कब कब फॉलो अप करना है। अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो एक प्लान अपने माइंड में जरूर बना लीजिए। गेट इन टच द सेम डे, जब आपने बेच दिया उसके बाद जरूर आप उनसे सुबह बेचा है तो शाम को बात करें, शाम को बेचा है तो अगले दिन बात करें। Basically, you must reach out a customer within 12 to 24 hours after you have sold the product. Build confidence by offering free advice and resources. जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया कि कस्टमर आपकी नॉलेज के लिए आपको बुलाएगा और तब आपका जो प्रोडक्ट है ऑटोमेटिकली सेल होगा। इसलिए खुद भी अपडेटेड रहिए, अपनी डाउनलाइन को भी अपडेटेड रखिए। जो भी चीजें आपको नई एक्सपीरियंस में हो रही है प्रोडक्ट यूज करके, उसको सबके साथ शेयर करिए। ऑफर वैल्यू इन एवरी फॉलो अप, डोंट पुश, द क्लाइंट ओज यू नथिंग। ये मैंने इसलिए लिखा है डोंट पुश बिकॉज कई बार एज डायरेक्ट सेलर्स हम ओवर बर्डनिंग हो जाते हैं क्लाइंट के लिए, वो नहीं करना है। आप एल्टोस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने एल्टोस के सिस्टम को अडॉप्ट किया है, सो डू नॉट पुश। प्यार से देखिए, आप देखेंगे कि प्रोडक्ट जो है ना ऐसी चुटकियों में ऑटोमेटिकली सेल होगा, उसमें जरूर याद रखिएगा। तो इस स्लाइड से आप लोगों ने क्या सीखा मुझे बताइए। 5 सेल्स फॉलो अप, और किस किस ने करी है मुझे बताएं, किस किस ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है अभी तक। हार्नेस द पावर ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया बहुत जरूरी है और इंटरमिंगल करने के लिए हमारे को बहुत बेनिफिट हो रहा है। इनफैक्ट इसने रीच हर एक डायरेक्ट सेलर का डबल ट्रिपल नहीं इन्फिनिटी कर दिया है। 5 या 6 मेन जगह हैं जहां पर आप फॉलो कर सकते हैं। फिर रिट्रेट कर रही हूँ, फेसबुक सबसे अच्छा मीडियम है आपको सेल करने का। सेकंड, आप इंस्टाग्राम और स्नैपचैट को यूज करिए और यूट्यूब वीडियोस पे जरूर ध्यान दें। सो इसमें हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसके बारे में बहुत बारी चर्चा हो चुकी है।
क्रिएट स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स। यानी कि पार्टनरशिप से क्या मीनिंग है? स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स आप बनाएं अपनी अपलाइन के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ, तो विन विन सिचुएशन ऑटोमेटिकली बनेगी। सी बियॉन्ड कि अच्छा उसने इतनी सेल कर ली, वो आज मेरे से आगे निकल गया, उसके बियॉन्ड चले जाए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हम सब लोग 12th में थे, 11th में थे, कॉलेज में थे, सब अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड आए या फोर्थ आए या 9th आए या 100 आए। फिर उसमें से कुछ लोग पहुंचे आईआईटी में। अब आईआईटी में जो पहुंच रहा है वो अपने स्कूल या कॉलेज में या जहां से भी पहुंच रहा है फर्स्ट 10 में होगा। यानी कि आईआईटी की एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो हर एक रैंक होल्डर है। सो गो बियॉन्ड दैट। तो आपको सिर्फ उस क्राइटेरिया के अंदर लिमिट नहीं रखना है। तो डेफिनेटली अब 100 बच्चे हो गए आईआईटी के अंदर। अब आप सोच रहे हैं कि वो 100 के 100 फर्स्ट आ सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। उसी तरह से कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई तो आपसे आगे बढ़ेगा, तो उसमें जेलसी नहीं करनी है, सीखे और आगे बढ़े, ये करना है। बी क्लियर ऑन योर वाई, क्यों आपको आगे बढ़ना है, क्या आपको चाहिए, ये हमेशा अपने आप को पूछते रहिए। सीक कम्युनिटी एंड अ शेयर्ड विजन। जो आपकी डाउनलाइन है, जैसे कि मैंने आप लोगों की कुछ स्टोरीज पढ़ी है आपकी वेबसाइट पे कि मैं चाहता हूं कि मेरी सारी जितने भी मेरे डाउनलाइन की टीम है उनके पास एक गाड़ी होनी चाहिए, ऐसा आपका विजन है, तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह का विजन अपने पास ना रिस्ट्रिक्ट करके और भी डाउनलाइंस में दीजिए कि हर एक का ये बने जिससे कि गोल जल्दी अचीव हो। डोंट रश द प्रोसेस, राइट थिंग्स डाउन। मेरी हमेशा रहती है रिक्वेस्ट सब लोगों से कि लिखिए। और मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं खुद भी बहुत लिखती हूँ, बहुत लिखती हूँ, मतलब बहुत ज्यादा लिखती हूँ। और अगर मैं मिस कर जाती हूँ 2 या 3 दिन लिखने के लिए तो मेरे को बहुत बड़ा गिल्टी फीलिंग होता है कि आई हैव मिस समथिंग। राइटिंग गिव्स यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। और रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि जो भी हम फेसबुक पे लिखते हैं या जो भी हम स्क्रीन पे लिखते हैं उससे ज्यादा है जब कलम उठा के अपने हाथ से लिखते हैं। तो याद रखिएगा, कलम उठा के हाथ से कितने लोगों ने लिखा, अगले 2-3 दिनों में फेसबुक पे जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले स्लाइड पे। बी परसिस्टेंट एंड कमिटेड, यानी कि रोज बात करिए, रोज मिलिए, देखिए कि आप क्या नया सीख सकते हैं। और कस्टमर के सामने 4 से 5 घंटे एवरी डे, 7 डेज में एक दिन छुट्टी जरूर लीजिएगा अपने आप को रीवर्क करने के लिए और चार्ज करने के लिए। जिस दिन आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे कि आपने क्या प्लान करना है, क्या ऐसे करना है, उस दिन आपको पेशेंस रखनी है, अपने पैशन को नहीं भेजना है, भूलना नहीं है और परसिस्टेंट रहना है। यानी कि मैं डायरेक्ट सेलर्स के लिए ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपना एक दिन फिक्स कर लीजिए, बिकॉज हमारा बिजनेस ऐसा है कि आप दिन फिक्स नहीं कर सकते हैं। जब आपको टाइम मिले हफ्ते में एक दिन आप काम ना करें, बल्कि इस पे फोकस करें, अपने पैशन को रिक्रिएट करिए, पेशेंस रखिए और परसिस्टेंट रहिए कि अगले हफ्ते मुझे क्या करना है। उसी के साथ हमारी स्लाइड्स खत्म हो गई हैं और नेक्स्ट वाली जो हमारी प्रेजेंटेशन रहेगी वो होगी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी क्या होती है। सो हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं। Why? Okay, Sanjay Kumar Mahapatra, ma'am, why people do not pick up phone? Even I don't pick up phone sometimes. So that is nothing, no big deal about it. उस समय वो बिजी होंगे या ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अवॉइड करना चाहते होंगे। तो आप ऐसे करिए उसके अंदर कि आप मैसेज करिए कि भाई आई वांट टू स्पीक टू यू, व्हाट इज अ गुड टाइम टू स्पीक। क्योंकि कई बार होता है कि हम फोन उठाना चाहते हैं बट वी कैन नॉट पिक अप, और हम ये क्यों सोचें कि भाई वो हमारी कॉल नहीं लेना चाहता या लेना नहीं चाहती। तो और मान लीजिए आपने 5 बार फोन किया, सो आप लिख लीजिए आई एम कॉलिंग फॉर सो एंड सो पर्पस, आई वांटेड इन केस वी कैन गेट अ मीटिंग विद यू। और अगर उनका जवाब नहीं आता है तो छोड़कर आगे नया प्रोस्पेक्ट ढूंढिए, उसके ऊपर टाइम लिमिटेड ही आप स्पेंड करें। विवेक जाधव, मैम आपका प्रेजेंटेशन हिंदी में बनाने तो ज्यादा लोग जुड़ेंगे, बहुत से लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती है। पॉइंट नोटेड, जरूर कोशिश करेंगे कि हिंदी में भी प्रेजेंटेशन बनाएं। विवेक जाधव जी, आपका जो मैसेज है उस पे जरूर हम ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि हिंदी में प्रेजेंटेशन कुछ बनाई जाए। कमलेश पटेल,
मैम मेरे से लोग प्रोडक्ट्स डेमो कराने से लेते हैं। हाँ जी, तो प्रोडक्ट डेमो कराने से प्रोडक्ट्स देते हैं। कमलेश जी थैंक यू टू रिट्रेट की प्रोडक्ट डेमो बहुत जरूरी है, चाहे आप उसको फेस टू फेस दें और चाहे आप उसको जूम कर दें। रजत कार, थैंक यू रजत जी, आप हमारे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं हमारे प्रोग्राम के लिए, तो थैंक यू सो मच। मनोज यादव जी, यस गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वैसे अभी आफ्टरनून हो रही है और शाम होने वाली है, तो अगली बारी अगर हम मिले तो चाय के साथ मिलना चाहिए हमें। मनीष मुखर्जी ने ओन अपडेशन इज वेरी मच नीडेड मैडम, यस अगेन बहुत अच्छा बोला मनोज जी, अपस्किलिंग बहुत जरूरी है, इसको करते रहिए, सीखते रहिए, और एल्टोस तो हमेशा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लाता है, और मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि हिंदी में भी हम कुछ प्रेजेंटेशंस जरूर आपसे बातचीत करें। इसीलिए ज्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि बेशक मेरी प्रेजेंटेशन इंग्लिश में हो, लेकिन बातचीत मेरी ज्यादा हिंदी में ही रहती है, जिससे आप लोग समझ सके, आगे और लोगों को समझा सकें। थैंक यू जगन्नाथ जी फॉर दिस प्रेजेंटेशन, आपने बहुत तारीफ करी है, थैंक यू सो मच। और सब लोगों ने बहुत थैंक यू बोला है, और बोला है कि हम लोग जेन्युइन प्रोडक्ट्स बेचते हैं डेफिनेटली, एंड सबने बहुत ज्यादा प्यार और थैंक यू भेजा है, तो मेरी तरफ से भी बहुत ज्यादा प्यार आप सब लोगों को डेफिनेटली। और अगली बारी यहाँ पर हमारे पास अभी कुछ है नहीं कि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं कितनी खुश हूँ आप लोगों से सुनकर कि आप सब लोगों को, हाँ मुझे कुछ मिल गया। देखिए मैं जहाँ बैठी हुई हूँ, मेरा ये ऑफिस है और वहां पे ये फोटो मिली है जहाँ पे हार्ट्स हैं, तो ये मैं दिल भेज रही हूँ आप सब लोगों को। 3 cheers to all the direct sellers of Altos. Hip hip हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। बाय बाय, मिलते हैं वेंसडे को फिर से आप सब लोगों के साथ ग्रीवेंस रिड्रेसल पर, और जो मेरा सवाल था 2 या 3 उनके जवाब जरूर दीजिएगा, जिससे कि हम उसको भी आगे ले जा सकें। थैंक यू।